Very good morning, class 7th students. Welcome all again to your social studies classes. Okay. So we were doing chapter number 4 in our history. That was emergence of regional kingdoms. Okay. So first of all, I am going to revise all that to all of you. First of all, come to chapter number 4. That is emergence of regional kingdoms in your history unit. Okay. So we had studied about the Bahmani kingdom in the past class, and in this class we are going to study about the Vijayanagar kingdom. So first of all, every student should open the book and come to page number 54. Come to page number 54. Okay. So today we are going to study about the Vijayanagar kingdom. Okay. So we are going to study about, have a look on Vijayanagar kingdom. What is all about Vijayanagar kingdom. Okay. The Vijayanagar kingdom emerged in South India in the early 14th century. Okay. As you all know that here in this chapter we are talking about the early 14th or 15th century. So Vijayanagar kingdom emerged, and that emerged in the South India in the early 14th century. It was founded by two brothers named Harihara Rai I and Bukka Rai I first in 1336 AD. So दो brothers थे जिनका नाम था हरिहरा राय फर्स्ट और बुक्का राय फर्स्ट. उन्होंने विजयनगर किंगडम को क्या किया था? फाउंडेड किया था. These two brothers were feudatories of the Kakatiya rulers of Warangal. When the Kakatiyas were routed by the Tughlaqs in 1323, both went to Kampili and entered the service of the local ruler. In later years, Kampili was conquered by the Tughlaqs and the two brothers were taken captive by the Tughlaq army. क्या हुआ? बाद में दोनों brothers को Tughlaq army ने क्या कर लिया? Captivate कर लिया. They were released on the condition that they would help the Tughlaq army to suppress rebellions in South India. उन लोगों को बाद में जेल से क्यों छोड़ा गया? किस बिहाफ में? कि वो लोग क्या करेंगे? जो रिबेलियंस है साउथ इंडिया में अगेंस्ट तुगलक, उनको वो लोग कम करेंगे. आफ्टर रीचिंग साउथ इंडिया द टू ब्रदर्स रिबेल्ड अगेंस्ट द तुगलक रूलर. ठीक है, जब वो साउथ इंडिया में पहुंचे तो वहां पर उन्होंने क्या किया? रिबेल किया अगेंस्ट द तुगलक रूलर एंड डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस. ओके. Thus they laid the foundation of the Vijayanagar kingdom, and this is how the Vijayanagar kingdom was founded. Okay. The dynasty that this started was known as the Sangam dynasty. This dynasty was followed by two other important dynasties. The fourth and the last dynasty came to power when the kingdom was going through the period of its decline and disintegration. Okay, let us study briefly about these four dynasties. तो जो चार dynasty उन्होंने फाउंड किया था उनके बारे में हम लोग अब जानेंगे. द फर्स्ट वन वॉज संगमा डायनेस्टी. सो द फर्स्ट वन वॉज संगमा डायनेस्टी. The Sangama dynasty, which was started by Harihara Rai first and Bukka Rai first, lasted from 1336 to 1485 AD. ठीक है, इसको किसने स्टार्ट किया? हरिहरा राय फर्स्ट और बुक्का राय फर्स्ट ने. उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आई? सलुवा डायनेस्टी. सेकेंड कौन सी डायनेस्टी आ गई? सलुवा. द सलुवा डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय सलुवा नरसिम्हा देवा राय. इट लास्टेड फ्रॉम 1485 टू 1505 AD. ठीक है, इसको किसने फाउंड किया था? सलुवा नरसिम्हा देव राय ने. उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आ गई? तुलुवा डायनेस्टी. तो थर्ड वन वाज तुलुवा डायनेस्टी. द तुलुवा डायनेस्टी वाज स्टार्टेड बाय तुलुवा नरस नायक. इट लास्टेड फ्रॉम 1491 टू 1570 AD. तो किसने इसको फाउंड किया?
Tulub Naras Nayak. Though Harshima II, the last emperor of Saluva dynasty, came to the throne in 1491 AD, the real power lay in the hands of his guardian Tuluva Narasa Nayak. So Tuluva dynasty is regarded to have started from the year of 1491 AD. Okay, after Tuluva dynasty, Aravidu dynasty came to power. So the fourth one was Aravidu. Aravidu dynasty में क्या हुआ? The tenure of the Aravidu dynasty is considered to be 1542 से लेकर के 1646 AD तक, ठीक है? In fact, from 1542 to 1565, Sadashiv Rai of the Tuluva dynasty held the throne, while the real power lay in the hands of Aliya Ram Rai, who was the son-in-law of Krishnadev Rai, the most powerful ruler of the kingdom. तो जो कृष्णदेव राय थे वो अराविदु डायनेस्टी के क्या थे? मोस्ट पावरफुल रूलर थे. ओके, सो रेन ऑफ हरिहरा राय वन. अब हम लोग हरिहरा राय वन में जो भी अचीवमेंट्स किए उसके बारे में हम लोग समझेंगे. आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन इन 1336, हरिहरा राय वन रूल्ड 2 डिकेड्स. ठीक है, उसने 2 डिकेड्स तक रूल किया. 2 डिकेड्स मीन्स अप टू 20 ईयर्स. 1 decade is equals to 10 years and 2 decades is equals to 20 years. ठीक है, तो उसने 20 सालों तक रूल किया. कौन? हरिहरा राय फर्स्ट ने. He conquered most of the area south of the Tungbhadra river. He earned the title of Purva Paschim Samudra Dishwara. ठीक है, which means the master of the eastern and western seas. He was succeeded by his brother Bukka Rai I. ठीक है, तो उसको टाइटल दिया गया पूर्व पश्चिम समुद्र दिश्वरा, जिसका मतलब क्या था कि वो मास्टर था. कौन कौन से एरियाज का? ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, बोथ द एरियाज. और उसके बाद कौन पावर किया, कौन रूल में आया? उसका भाई जिसका नाम था बुक्का राय वन. अब बुक्का राय वन ने क्या किया उसके बारे में जानेंगे. ही सबजुगेटेड द रूलर ऑफ आरकॉट, द रेडीज ऑफ कोंडाविदु एंड द सल्तन ऑफ मदुराई. By 1374, he had established his control over the Tungabhadra Krishna river Doab in the north. ठीक है, तुंगभद्रा कृष्णा रिवर दोआब जो कि नॉर्थ में, वहाँ पे उसने अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया. गोवा में किया. He paid tributes by the rulers of Sri Lanka. He exchanged ambassadors with the Ming dynasty of China. ठीक है, उसने ambassadors को भी एक्सचेंज किया. That and किससे? Ming dynasty of China के. अब इन दोनों की कहानी हम लोगों ने देख लिया. अब अदर जो रूलर्स थे उस टाइम पे उसके बारे में पढ़ेंगे. बुक्का राय वन वॉज सक्सीडेड बाय हिज सेकंड सन हरिहरा राय टू. ठीक है, बुक्का राय वन के बाद कौन आया पावर में? हरिहरा राय टू. हरिहरा राय टू कंसोलिडेटेड द किंगडम बाय ब्रिंगिंग द होल ऑफ साउथ इंडिया अंडर हिज कंट्रोल. उसने क्या किया? सारे साउथ इंडिया पर अपना कंट्रोल कर लिया. द मोस्ट केपेबल रूलर ऑफ द संगमा डायनेस्टी वॉज देव राय टू. देव राय टू जो थे वो संगमा डायनेस्टी के मोस्ट केपेबल रूलर थे. बहुत ही उनके अचीवमेंट्स हैं. ही सप्रेस्ड द रिबेलियस फ्यूडल लॉर्ड्स. ही ऑल्सो डिफीटेड द Zamorin of Calicut and Quillen in the south. He brought the Burmese kings of Pegu and Tanserium under his dominion. ठीक है. After Dev Rai II, the kingdom was ruled by the 3 more Sangama kings. अब देव राय सेकेंड के बाद जो किंगडम था उस 3 more Sangama kings उसमें आए. In the late 15th century, the kingdom saw a decline which continued till 1485. ठीक है, लेट 15th सेंचुरी में किंगडम क्या हो गया? उसका डिक्लाइन होना शुरू हो गया, वो खत्म होने के कगार पे आ गया. और इन 1485 कमांडर सलुवा नरसिम्हा देवा राय took some solid measures to reconsolidate kingdom. ठीक है, फिर से ये जो थे कौन थे? नरसिम्हा देवा राय. इन्होंने किंगडम को बचाने के लिए कुछ स्टेप्स लिए. सलुवा नरसिम्हा फाउंडेड द सलुवा डायनेस्टी विच रूल्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ ओनली 20 years. ठीक है, 20 सालों तक सलुवा डायनेस्टी चली. The reconsolidation of the kingdom was carried further by Tuluva Naras Nayak, who started the Tuluva dynasty. The most important ruler of the dynasty was Krishnadev Rai. ठीक है, तो Tuluva dynasty के most important ruler कौन थे? Krishnadev Rai. As already mentioned, he was the most powerful and successful ruler of the Vijayanagar kingdom. जैसा कि पहले मेंशन कर दिया गया है, ये कौन थे? कृष्णदेव राय जो थे वो मोस्ट पावरफुल थे. ठीक है, he was very valiant and successful ruler of the Vijayanagar kingdom.
हिस्ट्री रिवील्स द कॉइन्स ऑफ द विजयनगर किंगडम वर लार्जली मिंटेड इन गोल्ड एंड कॉपर। ठीक है, विजयनगर किंगडम में जो जब उस टाइम पे कौन से सिक्के प्रचलन में थे, तो वो थे गोल्ड एंड कॉपर के। अमंग्स द सिग्निफिकेंट गोल्ड कॉइन्स ऑफ द किंगडम वर दोज बेयरिंग द इमेज ऑफ द डाइटी ऑफ तिरुपति लॉर्ड वेंकटेश्वर। ठीक है, तो उन सिक्कों पर किसका पिक्चर बना रहता था? लॉर्ड वेंकटेश्वर का, जो कि तिरुपति के जिसको हम लोग तिरुपति के भगवान के नाम से जानते हैं। चलो, अब एडमिनिस्ट्रेशन क्या था उस टाइम पे, कहाँ कहाँ पे रूल किया इन लोगों ने? द किंग वॉज द हेड ऑफ द स्टेट। इस पूरे स्टेट का कौन राजा था? किंग। ही वॉज द अल्टीमेट अथॉरिटी इन ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। ऑब्वियसली वो किंग है तो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स वही देखेंगे। ही कैरिड ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क विद द हेल्प ऑफ अ कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, जैसा कि अभी है हमारा प्राइम मिनिस्टर हेड करता है कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। उस टाइम पे क्या होता था, जो आपका ये है विजयनगर किंगडम, उस टाइम पे किंग रूल करता था विद द हेल्प ऑफ कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। द कैबिनेट वॉज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड महाप्रधान। सेम है जैसे अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, वैसे उस टाइम पे भी था। जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको हम लोग महाप्रधान के नाम से उस टाइम जानते थे। अदर इंपॉर्टेंट टाइटल्स इंक्लूड द चीफ सेक्रेटरी कॉल्ड रायास्वामी एंड द इंपीरियल ऑफिसर्स ईच वर कॉल्ड एन अधिकारी। ठीक है, इट वॉज द मैंडेटरी फॉर ईच हाई रैंकिंग मिनिस्टर और ऑफिसर टू अंडरगो मिलिट्री ट्रेनिंग। सबके लिए मिलिट्री ट्रेनिंग के अंतर्गत जाना बहुत ही उस टाइम पे मैंडेटरी था, दैट वॉज कंपल्सरी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क एट लोअर लेवल्स वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिच फ्यूडल लॉर्ड्स कॉल्ड गौदास। ठीक है, तो जो लोअर लेवल्स पे एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा था वो किसके अंडरटेकिंग में हो रहा था? रिच फ्यूडल लॉर्ड्स, जिसको हम लोग गौदास के नाम से जानते हैं। किंगडम वॉज डिवाइडेड इनटू 5 मेन प्रोविंसेस, जिनको हम मंडलम्स के नाम से जानते हैं। हर एक मंडलम को कौन हेड करता था? गवर्नर। ईच मंडलम वॉज डिवाइडेड इनटू रीजन्स कॉल्ड कोटम्स, और हर एक मंडल का फिर से डिसइंटीग्रेशन हुआ था, जिसको हम लोग कोटम्स के नाम से जानते हैं। कोटम्स वर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स और नादूज, ईच सब डिवाइडेड इनटू सब डिस्ट्रिक्ट्स और स्थलस। द स्मॉलेस्ट डिवीजन वॉज अ विलेज और ग्राम। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन था वो क्या था? विलेज और ग्राम। Chola tradition of local self-governments was dropped during this period and village administration became feudal in nature. Okay, so now we are going to study about the economy. उस टाइम पे economy कैसी थी? विजयनगर आपका उस टाइम पे इकोनॉमी कैसी थी हमारी जब विजयनगर किंगडम के दौरान? द इकोनॉमी ऑफ द विजयनगर किंगडम लार्जली डिपेंडेड ऑन एग्रीकल्चर। तो मेनली क्या था उनका काम? एग्रीकल्चर करना। However, the overall prosperity of the kingdom was the result of a flourishing trade and other commercial activities including agriculture. वो लोग एग्रीकल्चर के साथ साथ में ट्रेड भी करते थे, दैट मीन्स व्यापार भी करते थे। The famous travelers Niccolo Conti and Abdul Razak have described Vijayanagar as a rich and prosperous kingdom. तो जो ये फेमस ट्रैवलर्स हैं इन्होंने विजयनगर किंगडम को क्या बताया कि वो एक रिच और प्रॉस्पेरस था। चीफ सोर्स ऑफ इनकम वॉज द लैंड टैक्स। ठीक है, जमीन का जो कर है, जो वहाँ से जो टैक्स आ रहा है वो फिक्स जस्ट फॉर द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। और टैक्स कैसे लिया जाता था? जितना की फर्टिलिटी सॉइल की है उतनी ही ज़्यादा टैक्स होता था। There were several other taxes, some of which included tax on property, tax on profession, tax on marriage and tax on the sale of produce. तो इन सब चीज़ों से भी उस टाइम पे इकोनॉमी रेगुलेट होती थी। दैट मीन्स जो इकोनॉमी रेगुलेट होती थी वो ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सेस भी होती थी। अब लिटरेचर में क्या हो रहा था विजयनगर किंगडम में? देखो, द विजयनगर रूलर्स एनकरेज लिटरेचर। तो वो लोग लिटरेचर को भी एनकरेज किया, उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। दे प्रमोटेड संस्कृत एज वेल एज रीजनल लैंग्वेजेस। उन्होंने संस्कृत को भी प्रमोट किया और रीजनल लैंग्वेजेस को भी प्रमोट किया, जो कि है तेलुगु, कन्नड़ और तमिल। स्कॉलर्स, पोएट्स एंड फिलोसफर्स रोट इन दीज लैंग्वेजेस ऑन सब्जेक्ट्स लाइक रिलीजन, पोएट्री, म्यूजिक, ग्रामर एंड मेडिसिन। ठीक है, तो उस टाइम पे इन सब चीज़ों पर स्कॉलर्स, पोएट्स और फिलोसफर्स ने लिखा भी। तेलुगु बिकेम अ पॉपुलर मीडियम फॉर लिटरेचर। ठीक है, तेलुगु जो थे क्योंकि साउथ इंडिया में थे ना ये लोग, तो तेलुगु क्या था? दैट बिकेम अ पॉपुलर मीडियम लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए। उस टाइम पे क्या हुआ? वो एक पॉपुलर मीडियम था, उसी के थ्रू हम लोग उस टाइम पे साहित्य वहाँ पे प्रचलन में था। स्पेशली अंडर द पैट्रोनेज ऑफ कृष्णदेव राय। और जब कृष्णदेव राय के अंडर में तो
और भी ज़्यादा तेलुगु का बोलबाला था। कृष्णदेव हैड अ ग्रुप ऑफ 8 ग्रेट पोएट्स कॉल्ड दी अष्ट दिग्गजाज इन हिज कोर्ट। ठीक है, अब कृष्णदेव जो राय थे उनके अंडर में 8 ग्रेट पोएट्स थे जिनको हम लोग अष्ट दिग्गजाज के नाम से जानते हैं। ही हिमसेल्फ वॉज अ तेलुगु स्कॉलर। ठीक है, वो अपने आप भी एक तेलुगु स्कॉलर था और उसने अमुक्तमल्याद एक फेमस बुक है जिसपे उसने काम किया था, उसने लिखा था। ग्रेटेस्ट तेलुगु पोएट जो थे उनका नाम क्या है? श्रीनाथ। वो किसके अंडर में थे? किंग देवराय सेकंड के अंडर में वो थे। उन्होंने क्या लिखा? मारुतत्रचरितमु एंड द सलिवाहन सप्त सती उन्होंने लिखा। 2 ऑफ द फेमस राइटिंग्स ऑन म्यूजिक कौन से हैं? संगीत सरा बाय विद्यानारायण एंड दी रतिरत्ना प्रदीपिका बाई प्रौध राय, द वैद्याज वल्लभम बाई लक्ष्मण पंडित एंड द आयुर्वेद सुधानिधि बाई सयान आर नोटेबल बुक्स ऑन मेडिसिन। तो ये दोनों किताबें क्या है? ये नोटेबल बुक्स हैं ऑन मेडिसिन, दैट मीन्स ऑन दवाइयाँ। अब आर्किटेक्चर किस तरीके से फ्लरिश हुआ? विजयनगर आर्किटेक्चर ओज अ लॉट टू द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ द चालुक्यास, द चोलास, द पांड्यास एंड द होसलास। ठीक है, इट वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज स्टाइल्स। तो इन लोगों के टाइम पे जो स्टाइल्स प्रचलन में थे आर्किटेक्चर के, उन सबका मिक्सचर विजयनगर आर्किटेक्चर को हमें दिखाता है। इन द अर्ली 14th century द किंग्स बिल्ट डेक्कन स्टाइल मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, डेक्कन स्टाइल मॉन्यूमेंट्स बनाए 14th century में। हाउएवर दे लेटर एडेड द्रविड़ स्टाइल गोपुरम्स टू देयर बिल्डिंग्स। अब देखो, हम्पी द कैपिटल ऑफ द किंगडम, जो हम्पी था वो क्या था? कैपिटल था विजयनगर किंगडम का। हैड मैनी ब्यूटिफुल बिल्डिंग्स स्पेशली टेम्पल्स, 2 of which have already been mentioned. The walls of these temples were carved with beautiful sculptures. विजयनगर आर्ट ऑल्सो इंक्लूड्स वॉल पेंटिंग्स। तो विजयनगर आर्ट में हमें वॉल पेंटिंग्स भी देखने को मिल जाएंगी। वॉल पेंटिंग्स ऑफ दशवथर इनकारनेशंस ऑफ लॉर्ड विष्णु जिनको हम समझते हैं, और गिरिजा कल्याण मैरिज ऑफ गॉडेस पार्वती। ठीक है, एट द विरूपक्ष टेम्पल एट हम्पी, द शिव पुराण पेंटिंग्स डिपिक्टिंग tales of Lord Shiva at the Veerbhadra temple at Lepakshi, and those are the Kamakshi and Varadaraj temples at Kanchi are fine examples of Vijayanagar dynasty of this art. चलिए, अब हम लोग थोड़ा कृष्णदेव राय के बारे में समझेंगे। इनके बारे में हम लोग केस स्टडी पढ़ेंगे कि कृष्णदेव राय जब रूल कर रहे थे तो फिर उस टाइम पे चीज़ें कैसी थी। कृष्णदेव राय वॉज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ द विजयनगर किंगडम। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, मैंने बहुत बार बता दिया, कृष्णदेव राय जो थे वो मोस्ट फेमस रूलर थे। ठीक है, तो ये मोस्ट फेमस रूलर थे विजयनगर किंगडम के। He ascended the throne in 1509 AD. Under his able rule, the kingdom reached the zenith of power. Zenith मतलब the maximum. That means the very good. Zeal. We know a lot about his time from the accounts of travelers like Domingo Pais and Abdur Razak. ठीक है, तो उस टाइम पे जब ये लोग ट्रैवलर्स थे, इन्होंने ट्रैवल किया, तो इनकी किताबों में इनके बारे में मिलता है। They have described the political, social and economic conditions of Krishnadev Rai. तो military campaigns क्या क्या भाई इनके थे? Formidable armies of Krishnadev Rai were successful everywhere. ठीक है, उनकी आर्मी बहुत ही strong थी, वो सब जगह successful थी। First half of his rule was characterized by long sieges and bloody conquests. His chief enemies were the Gajapati ruler of Odisha, Bahmani sultans, ठीक है, bahmani लोगों से भी इन्होंने लड़ाई की, who although divided posed a constant threat. The other rivals included the rebellious chiefs of Ummatur, Velamas of Bhuvanagari and the Reddys of Kondavindu. तो ठीक है, इन लोगों से ये सब इनके राइवल्स थे। ठीक है, इनसे इनकी लड़ाई थी। डेक्कन कैंपेन्स क्या क्या थे? During his rule, Krishnadev Rai put a check on the frequent raids and plunder of the Vijayanagar towns and villages by the Deccan sultans. During the period from 1509 to 1510, he defeated the Sultan of Bijapur. ठीक है, सुल्तान जो थे बीजापुर के, उनको इन्होंने
डिफीट किया, हराया और कोविलकोंडा पे अपना कब्जा जमा लिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, बिदार, गुलबर्ग, बीजापुर के रूलर्स को भी इन्होंने हराया और वहाँ पे अपना कब्जा जमा लिया। तो ये तो डेक्कन में जो इन्होंने कब्जा जमाया उसके बारे में था। अब उड़ीसा में इन्होंने क्या किया, उड़ीसा who were ruling northern Andhra in 1513 the Vijayanagar army defeated the Gajapati army after a year-long siege on the fort of उदयगिरी। तो उड़ीसा में जो लोग रूल कर रहे थे नॉर्दर्न आंध्र में, उनके ऊपर भी इन्होंने अपना कब्जा जमाया। विजयनगर आर्मी inflicted another defeat on the Gajapati ruler Pratha Parudra at Kodavidu after a siege of some months. He routed the Gajapati army after another siege at Kondapalli area. For the Gajapati king, this was the final defeat. ठीक है, अब गजपति किंग यहाँ से क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। After which he gave his daughter in marriage to कृष्णदेव राय। उसके बाद क्या होता है, वो हार में अपनी बेटी को दे देते हैं कृष्णदेव राय से और कृष्णदेव राय से उनकी क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है उनकी बेटी का। कैंपेन्स अगेंस्ट लोकल रूलर्स। ठीक है, अब लोकल रूलर्स के अगेंस्ट में कैसे जीतते हैं हम। किंग कृष्णदेव सबड्यूड द लोकल रूलर्स हु चैलेंज्ड हिज अथॉरिटी। ठीक है, वो क्या करते थे, जो लोकल रूलर्स थे वो चैलेंज करते थे कृष्णदेव राय को। ही कैप्चर्ड लैंड्स अप टू द कृष्णा रिवर by defeating the Reddys of Kondavidu and the Velamas of Bhuvnagiri. His army met the army of the Amateur chief Gangaraj on the banks of the Kaveri river. The chief was defeated, उनको इन्होंने हराया, and his territory was made a part of the Srirangapatna province। और उनकी जो टेरिटरी थी वो किसकी पार्ट बन गई, श्रीरंगपटना की। By the year 1517, कृष्णदेव had extended his boundaries across the river गोदावरी। तो ठीक है, 1517 तक इन्होंने क्या किया, अपने किंगडम का विस्तार कर लिया और गोदावरी रिवर तक अपने गोदावरी रिवर तक की बाउंड्रीज पर इन्होंने कब्जा जमा लिया। अब पोर्टुगीज से इन लोगों का क्या टर्म्स था। ड्यूरिंग हिज रेन कृष्णदेव राय डेवलप्ड फ्रेंडली टाइज विद द पोर्टुगीज। ठीक है, उनसे इन लोगों का दोस्ताना बिहेवियर था। Who had established the Portuguese dominion of India in Goa। गोवा में पोर्टुगीज आए थे, उन्होंने पोर्टुगीज डोमिनियन को एस्टैब्लिश किया था और कृष्णदेव राय उनसे क्या थे, फ्रेंडली थे। पोर्टुगीज मर्चेंट सप्लाइड गन्स एंड हॉर्सेस टू द किंगडम। जो इनकी आर्मी थी वहाँ पे इनको पोर्टुगीज जो मर्चेंट्स थे वो क्या सप्लाई करते थे, गन्स और हॉर्सेस। दे ऑल्सो शेयर देयर एक्सपर्टाइज विद द किंग इन इम्प्रूविंग वाटर सप्लाई टू द कैपिटल सिटी ऑफ द विजयनगर किंगडम। इंटरनल अफेयर्स ऑफ द किंगडम। अब भीतरी जो चीज़ें थी, अफेयर्स थे, इंटरनल अफेयर्स जो किंगडम के थे उनके बारे में समझेंगे कि वो क्या था। किंग कृष्णदेव राय वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट रिगार्डिंग द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द किंगडम। ठीक है, तो वो कानून व्यवस्था को बरकरार रखने में, मेंटेन करने में वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट राजा थे। कल्प्रेट्स एंड लॉ ऑफेंडर्स वर पनिश्ड सीवियरली। ठीक है, जो कल्प्रेट्स थे और लॉ ऑफेंडर्स थे जो कानून को तोड़ते थे उनको बहुत भारी सजा दी जाती थी। द किंग वॉज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, इसीलिए वो एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर थे, वो अच्छा रूल करते थे। ही वॉज हेल्प इन एडमिनिस्ट्रेशन बाय हिज एबल प्राइम मिनिस्टर सलूफ तिम्मारासु। ठीक है, तो जो प्राइम मिनिस्टर थे सलूफ तिम्मारासु वो उनको मदद करते थे एडमिनिस्ट्रेशन में। द टू ट्रांसफॉर्म देयर किंगडम इनटू अ हाईली प्रॉस्पेरस स्टेट। और फिर इन दोनों ने मिलकर के ही अपने किंगडम को एक हाईली प्रॉस्पेरस स्टेट में ट्रांसफॉर्म किया। Krishnadev Rai was a king with extensive powers and a strong personality. He went on extensive tours around the kingdom every year in order to inspect and study everything personally. तो वो क्या करते थे, हर साल अपने पूरे किंगडम पे वो कोई किंगडम के टूर पे जाते थे, वो देखने के लिए इंटरनली भीतर वो घुस करके देखते थे कि हाँ सब चीज़ें सही तरीके से चल रही हैं या नहीं। कृष्णदेव राय वॉज अ ग्रेट बिल्डर टू। ठीक है, He spent huge amounts of money on the construction of palaces and temples. Palaces और temples बनाने में उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे खर्चा किया। विरूपक्ष टेम्पल एंड द विथाल स्वामी टेम्पल आर द टू फेमस टेम्पल्स बिल्ड बाय हिम। ठीक है, विरूपक्ष टेम्पल और विथाल स्वामी टेम्पल इन्हीं के राज में बना। He realized that increased agricultural production would bring more revenue to the kingdom। और उन्हें ये बात पता थी कि जितना हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ाएंगे उतना ही हमारा किंगडम क्या होगा, फ्लरिश होगा। देयरफॉर उन्होंने क्या बनवाए, बहुत सारे डैम्स बनवाए, कैनाल्स बनवाए, टैंक्स बनवाए, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा इरिगेशन सिस्टम इम्प्रूव होता है।
और एग्रीकल्चर प्रमोट किया उन्होंने। देखो विरूपाक्ष टेम्पल का यहाँ पे फिगर भी बना हुआ है। दिस इज सो ब्यूटीफुल टेम्पल। किसके अंडर में बना? कृष्णदेव राय के अंडर में। क्यों बना? क्योंकि वो एक ग्रेट बिल्डर थे, उन्होंने बहुत सारे पैसे खर्चा किए इसे बनवाने के लिए, क्योंकि उनका कला की तरफ भी रुझान था। अब अदर एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि उनके किंगडम में अदर एस्पेक्ट्स में क्या था। किंग कृष्णदेव राय वॉज अ पेट्रन ऑफ लर्निंग। अब वो क्या थे? एक लर्नेड पर्सन खुद भी थे और एक बहुत ज़्यादा उनको लर्निंग, उनको पढ़ाई में और चीज़ों में उनको बहुत विश्वास था। ही वॉज हिमसेल्फ अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ तेलुगु, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को। हिज पीरियड इज कंसिडर्ड टू बी द गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर। तो उनके अंडर में जो तेलुगु लिटरेचर था उसका बहुत ही अच्छे से विस्तार हुआ। He had Ashtadiggajaz, a group of 8 noted poets in the court. आप लोगों को पहले ही बताया मैंने। मोस्ट पॉपुलर और ग्रेटेस्ट जो थे इन पोइट्स में, इन 8 पोइट्स में, उनका नाम था अल्लासानी पेद्दना। ठीक है, उन्हें हम लोग फादर ऑफ तेलुगु पोइट्री के नाम से भी जानते हैं। मनु चरित्रमु इज अ पॉपुलर वर्क ऑफ हिज पोएट। इन्होंने मनु चरित्रमु लिखा जो कि बहुत पॉपुलर वर्क है इनका। किंग ऑल्सो पैट्रोनाइज्ड पोएट्स एंड स्कॉलर्स ऑफ अदर लैंग्वेज। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तेलुगु पोएट्स को ही वो पैट्रोनाइज करते थे, वो अदर लैंग्वेजेस के भी पोएट्स को पैट्रोनाइज करते थे। और जो कि उनका वो लोग किस लैंग्वेजेस में लिखते थे? तमिल, कन्नड़ और संस्कृत में। द किंग वॉज अ स्टॉन्च फॉलोवर ऑफ द वैष्णवाइट सेक्ट बट ही शोड रिस्पेक्ट टू ऑल सेक्ट्स। वैष्णवाइट सेक्ट को ज़्यादा मानते थे कृष्णदेव राय, लेकिन वो सारे सेक्ट्स को बराबर का इज्जत देते थे। फॉर ऑल हिज अचीवमेंट्स किंग कृष्णदेव राय इज रिगार्डेड एज अ हीरो ऑफ द पीपल ऑफ कन्नड़ एंड तेलुगु डिसेंट। ठीक है, तो तेलुगु और कन्नड़ के की अगर हम बात करते हैं तो वो उनको वहाँ का हीरो कहा जाता है। इवन टुडे ही इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया। और इसलिए हम लोग ये समझते हैं कि वो एक महान राजा थे। ओके, सो विद दिस वी आर एंडिंग विद दिस चैप्टर and you all will study glossary. You all will have a glance on glossary and points in brief, and then you all will try to solve the question and answers too. Okay class, thank you.